लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये सब सप्लाई का जो डेफिनेशन है एरिया है उसमें कवर हो जाता है। লাইসেন্স তুমি ধরো মাইক্রোসফট তার যে কপি দিচ্ছে তো সেটা তো লাইসেন্স এক ধরনের, তো দিস ইজ অলসো কল্ড সাপ্লাই। for anything to be supply there should be, for anything to be supply there should be consideration. If there is no consideration it should not be considered as supply. So there are some cases where we take free services, these are not considered as supply. For example, we take services of Facebook, we take services of Google, these are free services, there is no consideration, so these are not considered as supply. What is composite supply? Composite supply where two or more goods or services are there. What is composite supply? Composite जहां पर दो या फिर उससे ज्यादा गुड्स या फिर सर्विस है, गुड्स या फिर सर्विस है, वो है कंपोजिट। कंपोजिट मीन्स दो या फिर उससे ज्यादा गुड्स है या फिर सर्विस है। एक गुड्स हो सकता है और एक सर्विस हो सकता है, दो सर्विस हो सकता है, दो गुड्स हो सकता है, लेकिन दे आर नेचुरली बॉन्डेड, दे आर व्हाट, दे आर नेचुरली बॉन्डेड, लेकिन वो नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए, नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ন্যাচারালি বান্ডেলড होना चाहिए। বান্ডেল বান্ডেল মানে বুঝতে পারবে কিছুক্ষণ পরে। वन ऑफ देम इज प्रिंसिपल, दोनों में से या फिर उससे ज्यादा जो गुड्स या फिर सर्विस है उनमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए। प्रिंसिपल जैसे कि एग्जांपल से देखो कि जब प्लेन का जो टिकट है वो जब खरीदते हो उसमें क्या होता है, उसमें फूड का प्राइस रहता है, फूड 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 का प्राइस रहता है। इधर क्या लिखा है? अच्छा, जब एरोप्लेन टिकट खरीदते हो उसमें जो प्राइस चार्ज किया जाता है उसमें क्या क्या रहते हैं? ट्रैवलिंग का खर्चा और फूड रहता है। तो यहाँ पे एक तो गुड्स या फिर फूडिंग सर्विस है और एक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है। फूडिंग सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दोनों मिला के टिकट का प्राइस फिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कौन सा है? प्रिंसिपल की खाना है या फिर ट्रैवल है? ट्रैवल इज द प्रिंसिपल सप्लाई। और इसी को करवाने के लिए तुम्हें फूड भी देना जरूरी है, फूड भी देना जरूरी है। तो यहाँ पे ন্যাচারালি বান্ডেলড है। ন্যাচারালি বান্ডেল বুঝতে পারলে এবার? ন্যাচারালি বান্ডেলড মানে একটা সার্ভিস দিতে গেলে আরেকটা দিতেই হবে, ম্যান্ডেটরি, মানে সেটা না দিলে হবে না। তুমি ধরো ট্রাভেল সার্ভিস দিচ্ছ কিন্তু খাওয়ার সেখানে দরকার, সেখানে সার্ভিস দিচ্ছ না, তো এরোপ্লেনের ভেতরে খাওয়ার না দিলে তুমি কোথায় খেতে যাবে সেখানে? তো দিস ইজ কল্ড ন্যাচারালি বান্ডেলড। तो दो सर्विस और गुड्स नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए, एक प्रिंसिपल होना चाहिए। एग्जाम्पल धरो ट्रेनेर एग्जाम्पल নিয়ে নাও। ট্রেন এসি ট্রেনে তুমি টিকিট বুকিং করেছো, হ্যাঁ, ওই দুটো ছাড়া আমার তো কোনো সেরকম নজর আসছে না, ঠিক আছে? अच्छा, এরপরে এসে যাও মিক্সড সাপ্লাই। मिक्स्ड सप्लाई इसमें भी दो या फिर उससे ज्यादा गुड्स एंड सर्विस है
लेकिन they are not naturally bundled. They are not naturally bundled. Price for each product or service can be charged separately. এখানে তুমি সেপারেটলি চার্জ করতে পারো, ঠিক আছে, এখানে তুমি সেপারেটলি চার্জ করতে পারো, কিন্তু তুমি বান্ডেলড করে দিচ্ছ কি জন্য? তুমি তোমার সুবিধার জন্য, তুমি তোমার বেনিফিটের জন্য সেল করছো অ্যাজ এ সিঙ্গেল প্রাইস। সো দিস ইজ কল্ড মিক্সড সাপ্লাই। When you are supplying two or more or goods services, but they are not naturally bundled, you are bundling them for your own benefit. This is called mixed supply. তাহলে এখানে একটা এক্সাম্পল রয়েছে, দেখো তুমি একটা গিফট বক্স বানিয়েছো, যেখানে কি রাখছো? টাই, ওয়াচ, ওয়ালেট and pen, and you are fixing the whole gift box for rupees 1000. This item can be individually sold. This item also individually sold, can be individually sold. ये जो आइटम है इसे अलग अलग करके बेचा जा सकता है, लेकिन तुम गिफ्ट बना के बेच रहे हो क्योंकि इसे तुमसे फायदा मिलेगा। तो when they are not naturally bundled, then this mixed supply is called mixed supply. Bundled করছো কিন্তু they are not naturally bundled. This supply is called mixed supply. तो इसे कैटेगराइज क्यों किया गया है? क्योंकि कंपोजिट सप्लाई के केस में जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट होता है, जो जीएसटी रेट प्रिंसिपल सप्लाई के लिए एप्लीकेबल होता है, वो पूरा वैल्यू के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। सपोज यहाँ पे दो सर्विस है, फूडिंग सर्विस और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है। तो ट्रैवल सर्विस में जो जीएसटी एप्लीकेबल है, वही जीएसटी रेट पूरा सर्विस का जो वैल्यू है, सपोज टिकट प्राइस है 30,000, तो ट्रैवल सर्विस का जो जीएसटी रेट है वो पूरा वैल्यू के ऊपर चार्ज होगा। मतलब जीएसटी रेट एप्लीकेबल टू प्रिंसिपल सप्लाई is applied on the whole amount in case of composite supply. लेकिन in case of mixed supply, सपोज नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज टाई का जो रेट है, टैक्स रेट, वो 5% है। टाई का जो रेट है 5% है। वॉच के लिए 18% जीएसटी है, वॉलेट के लिए 5% है, पेन के लिए 12% है। लेकिन अगर तुमने इसे इंडिविजुअली बेचते तो तुम्हें टाई के लिए 5% देना पड़ता, वॉच के लिए 18% देना पड़ता, वॉलेट के लिए 5%, पेन के लिए 12% इंडिविजुअली देना पड़ता अगर तुम इंडिविजुअली बेचते। तुमने बॉक्स बना दिया, गिफ्ट बॉक्स, इसके लिए इसलिए तुम्हें देना पड़ेगा मैक्सिमम जो रेट है। मैक्सिमम तीनों चारों में से कौन सा है? 18%। वही मैक्सिमम रेट अप्लाई कर जाएगा किसके ऊपर? पूरा वैल्यू के ऊपर, एंटायर कंसिडरेशन के ऊपर, ठीक है, एंटायर कंसिडरेशन के ऊपर। তুমি কি করতে চাইছো? মিক্স করে বিক্রি করতে চাইছো? গভর্নমেন্টকে কম ট্যাক্স দিতে চাইছো? গভর্নমেন্ট সেটা শুনবে না। তো সেই জন্য রুলস বানিয়েছে, ইন কেস অফ মিক্সড সাপ্লাই you have to pay the highest rate among the items applicable. তাহলে applicable GST rate 5% for tie, 12% for watch, 5% again for wallet, and 12% for pen. Out of them, 18% is highest, so highest rate would be applied on the entire value of the gift box. Entire value means 1000 rupees.
So GST amount is 180. Sub in case of composite supply, what happened? Suppose ticket price is 30,000. Like in GST rate for travel service GST rate is suppose 12%. 12 এটা তুমি 5 করে দাও, 5% for fooding suppose 12%, আচ্ছা এটা 12 এটা 18 করা যাক, 18%। फूडिंग के लिए सपोज 12%, ट्रैवल सर्विस के लिए सपोज 18%। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल कौन सा है? ट्रैवलिंग। एंटायर जीएसटी वुड बी चार्ज ऑन 30,000। सपोज ट्रैवलिंग के लिए सपोज 5% है, फूडिंग के लिए 12 है सपोज, तो एंटायर 5% would be charged on the entire amount of rupees 30,000. In case of composite supply, we have to find out which service or which goods is the principal supply. Principal supply is the traveling service. Principal supply is the traveling service. So you have to charge, you have to compute 5% GST on the entire amount 30,000. তাহলে বুঝতে পারলে কি বলে না যে মিক্স সাপ্লাই হলে ম্যাক্সিমাম যে রেট রয়েছে সেইটা চার্জ হবে এন্টায়ার ভ্যালুর উপরে, বাট ইন কেস অফ কম্পোজিট সাপ্লাই ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই হুইচ সার্ভিস অর গুডস ইজ প্রিন্সিপাল সাপ্লাই। You have to find out the rate of that product. তাহলে কম্পোজিট সাপ্লাই তুমি দেখবে যে প্রিন্সিপাল সাপ্লাই কোনটা, প্রিন্সিপাল সাপ্লাইতে যে রেট রয়েছে সেটা এন্টায়ার ভ্যালুর উপরে অ্যাপ্লিকেবল হবে, ঠিক আছে। আর কম্পোজিট মিক্স সাপ্লাইতে তোমার দেখতে হবে যে আইটেম গুলো রয়েছে তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম জিএসটি কোনটাতে রয়েছে, আর সেই রেটটাই অ্যাপ্লিকেবল হবে এন্টায়ার ভ্যালুর উপরে। সাপোজ 18%, আমি এখানে সাপোজ এখানে 5%, সাপোজ 5% না তোমার 18 রয়েছে, তাহলে 18ই অ্যাপ্লিকেবল হয়ে যাবে 30,000 এর উপরে প্রিন্সিপাল। হ্যাঁ, প্রিন্সিপালে যত আছে সেটাই অ্যাপ্লাই হবে। মিক্স সাপ্লাই মিন্স হুইচ আর নট ন্যাচারালি বান্ডেড। ট্রাভেলিং সার্ভিসে তুমি ট্রাভেল সার্ভিস ফুড সার্ভিস দুটোই দিচ্ছ, এখানে কি ফুড সার্ভিস কি আলাদা করা যাবে ট্রাভেলের সাথে? তোমাকে ট্রাভেল সার্ভিস দিতে গেলে ফুড দিতে হবে, ট্রেনের কেসে তোমাকে 2 দিন ট্রেন চলবে। মিক্স সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে তুমি বক্স বানাচ্ছ, তারপর তুমি বলছো কি ল্যাপটপ নিলে ব্যাগ ফ্রি, তো এটা কি হয়ে গেল? মিক্স সাপ্লাই হয়ে গেল। ল্যাপটপ নিলে ব্যাগ ফ্রি, মিক্স সাপ্লাই হয়ে গেল। তাহলে দেখতে হবে যে কোনটার জিএসটি রেট বেশি, ব্যাগের না ল্যাপটপে। তো যার জিএসটি রেট বেশি হবে সেই জিএসটি রেটটা তোমার এন্টায়ার ভ্যালুর উপরে, মানে ব্যাগ আর এটা আমি তোমার কি বললাম কম্পোজিট সাপ্লাই, মিক্স সাপ্লাই বললাম। ইউ ক্যান সেপারেটলি সেল ব্যাগ, ইউ ক্যান সেপারেটলি সেল laptop, but you are mixing this as a combo, so we have to find out the highest rate of these two items. এটা একটা বক্স দেখতে পাচ্ছ, বক্সের ভেতরে আছে কি নেই? বক্সের ভেতরে আছে এই 4টে জিনিস। বক্সটার ভ্যালু হচ্ছে 1000 টাকা। বক্সের ভেতরে 4টে আইটেম রয়েছে, তার ভ্যালু হচ্ছে 1000 টাকা। তুমি 4টে আইটেমকে আলাদা আলাদা সেল করতে পারো। অ্যাজ এ সেলার তুমি বক্সটা বানাচ্ছ কেন? বাজারে ডিমান্ড রয়েছে যে গিফট বক্স কেনার, তুমি তোমার বেনিফিটের জন্য এটা বক্স করছো। তো গভর্নমেন্ট বলছে যে
এই তুমি যতগুলো আইটেমের ভেতরে রেখে বিক্রি করছো তার মধ্যে তোমাকে হাইয়েস্ট রেট দেখতে হবে কোনটাতে অ্যাপ্লিকেবল রয়েছে, সেই রেটটাই পুরো ভ্যালুর উপরে লেগে যাবে, পুরো ভ্যালু 1000, 1000-এর উপরে লেগে যাবে। There are some examples. Example, এটা কিরণ দাগ করছো কেন? नो सर, ये मेरा नहीं है। तुम्हारा ही है, मेरा नहीं है। अच्छा देखो, बिग बाजार इज ऑफरिंग free bucket with detergent powder purchase ₹100, rate of GST in bucket detergent powder। देखो इधर देखो, बिग बाजार क्या कर रहा है, फ्री बकेट दे रहा है किसके साथ, डिटर्जेंट पाउडर के साथ। तो प्राइस कितना है दोनों को मिला के, दोनों को मिला के पैसा कितना आ रहा है, टोटल जो प्राइस दोनों को मिला के जो प्राइस आ रहा है वो 100, लेकिन दोनों का जो रेट है वो तो सेम ही है, तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेट सेम है, ठीक है। तो जीएसटी बोलो 18%, 100। अच्छा उसके बाद देखो, you are a dealer of laptop, you supply laptop bag along with laptop in the ordinary course of business. In the ordinary course of business, you have sold laptop bag along with laptop। কি হলো কথাটা কিসের, তুমি বুঝে গেছো সব? না তোমাকে কিছু বলতে হবে না। You have sold laptop bag along with laptop for 50,000। जो the dealer is selling laptop along with laptop bag। দুটো দিচ্ছে, mixed supply, they can be individually sold, you can sell bag separately, but কি হলো তুমি বুঝতে পারছিলে না বলছিলে আবার কি কথা কিসের হতো, এদিকে দেখো আমার কথা শোনো। তোমার হাসা শেষ হচ্ছে, আরো হাসো, আরো হাসো, আর কোনো হাসবে নাকি, হাসবে তো হেসে নাও একবার, হাসবে তো হেসে নাও। এইট 28% অ্যাপ্লাই করে বলো কত হচ্ছে। নেক্সট, স্যার এটা কম্পোজিট সাপ্লাই, এটা স্যার হবে বলে স্যার পার্সেন্টেজ কম্পোজিট সাপ্লাই, এটা পুরোটা করে দেখো। is it composite supply or mixed supply? Composite supply। You have booked Duronto train express train ticket and you have been you will be provided meal during journey। Composite supply, they cannot be separated। अच्छा, शेड्यूल 1 में कुछ सर्विसेज है, कुछ एक्टिविटीज है जो कि सप्लाई नहीं माना जाएगा। शेड्यूल 1 में कुछ एक्टिविटीज है जो कि सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा।
দাঁড়া 1 মিনিট, দাঁড়া 1 মিনিট, এখানে আমি বলে দিচ্ছি। शेड्यूल 1 में कुछ एक्टिविटीज है जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी सप्लाई माना जाएगा, फिर भी सप्लाई माना जाएगा। शेड्यूल 1 में कुछ एक्टिविटीज है जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी सप्लाई माना जाएगा। We have learned that for supply there should be consideration, but शेड्यूल 1 में कुछ ऐसे एक्टिविटीज है जो कि सप्लाई माना जाएगा इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन। कौन सा है? अगर तुम डिस्पोज कर देते हो बिजनेस असेट को, किसी को डोनेट कर देते हो बिजनेस असेट को, सपोज तुमने एक कार खरीदा है, वो कार किसी को तुमने डोनेट कर दिया, तो कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी माना जाएगा कि ये सप्लाई हो गया है, तो उसके हिसाब से जीएसटी देना पड़ेगा। তুমি বলবে কোন রেট, মানে কোন ভ্যালুর উপরে দেবো, কোন ভ্যালুর উপরে দেবো, কোন ভ্যালুর উপরে দেবো? তোমাকে তাহলে ফেয়ার মার্কেট ভ্যালু দেখতে হবে। তুমি ফ্রিতে কাউকে দিয়েছো, অ্যাকচুয়ালি তার ভ্যালু কত হওয়া উচিত সেটা দেখতে হবে। বিজনেস অ্যাসেট কাউকে যদি ট্রান্সফার করো, ডোনেট করো, সেক্ষেত্রে তোমাকে জিএসটি লাগবে, তার উপরে জিএসটি লাগবে। ডিসপোজ অফ, in case of old asset the term dispose of is used in case of old asset, ঠিক আছে? যদি ট্রান্সফার করে দাও, কাউকে দিয়ে দাও বা ডিসপোজ অফ করে দাও, তখনই হবে ইফ ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট ইজ অ্যাভেড। যদি ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নিয়ে নেওয়া হয়, ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের ক্লাসে শিখেছো ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট কি? পারচেজ করলে, কোনো আইটেম পারচেজ করলে তার উপরে যে ট্যাক্সটা দিয়ে আসো তার বেনিফিটটাকে নিয়ে নেওয়াকে কি বলে? ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট। তো তুমি যদি ওই অ্যাসেটের উপরে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নিয়ে নাও, ইফ ইউ টেক ইনপুট ট্যাক্স অন দ্যাট অ্যাসেট অ্যান্ড সেল দেয়ার আফটার, you have to pay GST because it will be considered as supply. আচ্ছা, এখানে কিছু শিডিউল রয়েছে, এগুলো আমি পরে ডিসকাস করব। শিডিউল 1 2 3 কিছুটা বলে দিয়েছিলাম। अच्छा, शेड्यूल 1 में क्या है? 1 में कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। शेड्यूल 2 में कुछ एक्टिविटीज है जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। वहाँ पे बताया गया है कि कौन सा एक्टिविटीज सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, कौन सा एक्टिविटीज सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और शेड्यूल 3 में क्या लिखा है? शेड्यूल 3 में लिखा है कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज है जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, they will not be considered as supply of goods, supply of service। कुछ ऐसे एक्टिविटीज है शेड्यूल 3 में जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं माना जाएगा। বুঝতে পারলে? তো এর ডিটেলে আমি আর যাচ্ছি না, এগুলো তেমন ইম্পর্টেন্ট নেই। তো তোমাকে মোটামুটি প্রত্যেকটা শিডিউলে কি রয়েছে সেটা জানতে হবে। ইন কেস অফ ফার্স্ট শিডিউল there are some activities they would be treated as supply even if there is no consideration। তাহলে শিডিউল 1 में কি আছে বলো? শিডিউল 1 এ কিছু অ্যাক্টিভিটিস রয়েছে যেখানে কনসিডারেশন নেই কিন্তু সাপ্লাই ধরে নেওয়া হবে। সাপ্লাই ধরে নেওয়া হবে, সাপ্লাই অফ গুডস হতে পারে, সাপ্লাই অফ সার্ভিস হতে পারে, সাপ্লাই ধরে নেওয়া হবে, কনসিডারেশন নেই। কিন্তু শিডিউল 2 তে রয়েছে কিছু অ্যাক্টিভিটিস রয়েছে, সেই অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে সেটাকে সাপ্লাই অফ গুডস বলা হবে কি সাপ্লাই অফ সার্ভিস বলা হবে বলে দেওয়া রয়েছে এখানে। আর শিডিউল 3 তে যেগুলো সাপ্লাই অফ গুডস হবে না, সাপ্লাই অফ সার্ভিস হবে না। এক্সাম্পল দো, এক এক্সাম্পল, এটা শিডিউল 3 টা ভালো করে বলিয়েছিলাম আজকে, আগের দিন এটা বলেছিলাম ঠিক করে, বলো।
Services of funeral, burial, crematorium, mortuary services. হ্যাঁ, তার যে সার্ভিস, ধরো তুমি একটা অর্গানাইজেশন খুলেছো, সাপোজ ইউ হ্যাভ ওপেন্ড অ্যান অর্গানাইজেশন হু প্রোভাইডস ফিউনারাল সার্ভিস, লোক মারা যাওয়ার পরে তার যে শেষ কাজ সেটা তার সার্ভিস দিয়ে থাকে, তার সার্ভিস দিয়ে থাকে, কোনো অর্গানাইজেশন রয়েছে সেই ধরনের সার্ভিস দিয়ে থাকে, শেষ কাজ কমপ্লিট করে, মানে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার পরে যা করার, ঠিক আছে। তো ইন দ্যাট কেস जीएसटी will not be applicable on that, जीएसटी applicable नहीं होगा, applicable जीएसटी applicable नहीं होगा, क्योंकि कहाँ पे कवर है, शेड्यूल 3 में, शेड्यूल 3 में बोला हुआ है कि ये सब एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटीज है सप्लाई ऑफ, ये एक्टिविटीज सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, ये सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, इसलिए if there is a supply you have to pay tax, you have to pay GST. ঠিক, শিডিউল 3 তে যে সমস্ত অ্যাক্টিভিটিস রয়েছে সেগুলো সাপ্লাই হিসাবেই ধরা হবে না, সাপ্লাই অফ গুড, সাপ্লাই অফ সার্ভিস ধরা হবে না, যদি সাপ্লাই না হয় তাহলে জিএসটি লাগবে না, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে চ্যাপ্টার কি আছে সাপ্লাইয়ের পরে? registration chapter হচ্ছে registration chapter, there is registration general procedure. अच्छा, जीएसटी রেজিস্ট্রেশন চ্যাপ্টার কিছুটা আগে পড়ে নেওয়া যাক। GST registration chapter means general procedure chapter, general procedure chapter. General procedure chapter. जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कितना लेना पड़ता है? हर स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन। जीएसटी में कितना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है? एक ही रजिस्ट्रेशन हर स्टेट के लिए, हर स्टेट के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अच्छा, এখানে আমি দুটো পার্ট করে দিচ্ছি, এটা चलो जनरल प्रोसीजर चैप्टर। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितना लेना पड़ता है हर स्टेट के लिए? बोलो सर चैप्टर 3 नहीं करवाएंगे? करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन चैप्टर देख लो पहले, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। हर स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन तो लेना ही पड़ेगा अगर उस स्टेट में तुम्हारा बिजनेस है तो, ठीक है तुम्हारा। लेकिन एक स्टेट में तुम एक से ज्यादा भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, एक स्टेट में तुम एक से ज्यादा भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो अगर तुम्हारा बिजनेस वर्टिकल अलग अलग है। सपोज तुम्हारा कंप्यूटर शॉप है, फर्नीचर शॉप है, और बोलो क्या शॉप है?
तो जितना भी बिजनेस है अलग अलग बिजनेस है, मतलब तुम्हारा बिजनेस वर्टिकल अलग अलग है, तो सेपरेट बिजनेस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो विद इन द स्टेट। नॉर्मली सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर एच स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन फॉर वन स्टेट। तुम्हारा और दूसरे स्टेट में बिजनेस है तो उस स्टेट में भी तुम रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, हर स्टेट में एक करके। लेकिन तुम्हारा बिजनेस वर्टिकल अलग अलग है तो एक स्टेट में तुम मोर देन वन रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। अंडरस्टूड? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अगर तुम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो उसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन। अगर तुम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो तो उसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन। व्हाट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन? सपोज सपोज इसके लिए मैं, सपोज यहाँ कोलकाता में हेड ऑफिस है, कोलकाता में हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस है, बिहार, बिहार में एक ब्रांच है। अच्छा, ये एचओ, और मुंबई, मुंबई में भी एक ब्रांच है, और एक ब्रांच बोलो चेन्नई। तो तुम्हारा हेड ऑफिस किधर है? हेड ऑफिस, हेड ऑफिस कलकत्ता में है, तो हेड ऑफिस में तो एक रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। तो हेड ऑफिस क्या करते हैं कि वहाँ पे गुड्स बनते हैं, गुड्स बनाकर इधर भेज देता है, इधर भेज भेज दिया जाता है। तो सेल किधर होता है? बिहार में, चेन्नई में, मुंबई, यहाँ पे सेल होता है। लेकिन गुड्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है? तो टैक्स किससे देना पड़ रहा है? तो इनपुट टैक्स किधर जमा हो रहा है? इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स किधर जमा हो रहा है? कलकत्ता में। लेकिन आउटपुट टैक्स किधर हो रहा है? आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स किधर हो रहा है? बिहार में आउटपुट टैक्स हो रहा है, इधर आउटपुट टैक्स हो रहा है, आउटपुट टैक्स इधर हो रहा है। সেলের উপরে ট্যাক্স। রেকর্ডিং দেখো নি কেন? বুঝতে পারোনি তো কি হবে? আউটপুট ট্যাক্স মিন্স ট্যাক্স অন আউটওয়ার্ড সাপ্লাই, ট্যাক্স অন আউটওয়ার্ড সাপ্লাই, যেটা সেল করছো ওটাই হচ্ছে আউটওয়ার্ড সাপ্লাই। তো হেড অফিস তো ম্যানুফ্যাকচার করছে, হেড অফিস ইজ ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড টেকিং র ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড ইনপুট ক্রেডিট ইজ অ্যাকুমুলেটিং इन हेड ऑफिस। অ্যাকুমুলেট কোথায় হচ্ছে? हेड ऑफिस है। इनपुट टैक्स परचेज ऊपर टैक्स। लेकिन जो आउटपुट टैक्स हो रहा है वो आउटलेट में हो रहा है, बिहार, मुंबई। तो आउटपुट टैक्स के साथ एडजस्ट क्या किया जाता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पे जो इनपुट टैक्स है इसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अमंग मुंबई, चेन्नई, बिहार ब्रांच। इन ब्रांच में से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्यों लो? इन ब्रांच में से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इनपुट टैक्स। क्यों लो? इन ब्रांचेस में से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा
इनपुट टैक्स। तो इसके लिए हेड ऑफिस को कैसा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन। इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन। अगर इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो उस केस में लेना पड़ेगा इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन। কি বলেছে বলো, কি বললাম? পুরোটা বলো, কখন নিতে হবে? চারদিকে বলতে কার দিকে? ইনপুট ট্যাক্স মানে কি? ইনপুট ট্যাক্স, হোয়াট ইজ ইনপুট ট্যাক্স? raw materials হেড অফিসে যেটা পাই বলতে কি পাই? অনেক কিছুই তো পায় হেড অফিস। ট্যাক্সটা পায় না, ট্যাক্সটা দিয়ে দিতে হয়। अच्छा देखो, तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट कर, इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है? ওটাই দেখছি স্যার কি করতে স্যার জি ওটা দেখ ঠিক আছে। अच्छा देखो, जीएसटी कब लेना पड़ेगा? अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है? 20 लाख से कम है तो रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है? तो गुड्स के केस में 40 लाख, सर्विस के केस में 20 लाख। गुड्स के केस में 40 लाख, सर्विस के केस में 20 लाख। अगर तुम्हारे पास तुम गुड्स भी प्रोवाइड कर, गुड्स भी सेल करते हो, सर्विस भी प्रोवाइड करते हो, गुड्स भी सेल करते हो और सर्विस भी प्रोवाइड करते हो, उस केस में 20 लाख, ठीक है? जो एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट सेल वैल्यू। अच्छा, कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट है उसमें टर्नओवर कम देखा जाता है, उसमें 20 लाख देखा जाता है। तो नॉर्मली तुम याद रखो कि सर्विस के केस में 20 लाख देखना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं ये चेक करने के लिए सर्विस के केस में 20 लाख देखना है और गुड्स के केस में 40 लाख देखना है, ठीक है? यही याद रखो। क्या जब तुम कैलकुलेट करोगे ये टर्नओवर, क्या स्टेट वाइज कैलकुलेट करोगे कि एक पैन के अंडर जितना टर्नओवर हो रहा है, सपोज तुम्हारा तुम इंडिविजुअल हो, सपोज तुम इंडिविजुअल हो, तुम्हारा बिजनेस कलकत्ता में भी है, बिहार में भी है, तो टर्नओवर जब चेक करोगे तुम्हारा टर्नओवर 40 लाख एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो क्या वेस्ट बंगाल का ही टर्नओवर देखोगे, क्या बिहार का टर्नओवर भी देखोगे? স্যার वो जो ओनर তার যে প্যান কার্ড वाइज देखना पड़ेगा। पैन कार्ड के अंडर जितना जितना सारा रजिस्ट्रेशन है, जितना जहाँ जहाँ पे तुम बिजनेस कर रहे हो, देखना पड़ेगा कि तुम्हारा टोटल टर्नओवर कितना निकल के आ रहा है। প্রত্যেকটা স্টেটে ধরুন প্যান কার্ড আলাদা আলাদা In case of individual, PAN card always one. For every entity, single PAN card is issued. Single PAN card is issued for every person. It may be individual, partnership firm. আমার বিজনেস আমি চালাচ্ছি বাট আমার বিজনেস ধরুন আমার ওয়েস্ট বেঙ্গল বিজনেস আমি আমার নামে চালাচ্ছি বাট মানে অন্য কোনো কথা নয়, অন্য কোনো স্টেটে যখন আমি সেই অন্য একটা বিজনেস করছি তখন সেটা আমারই রিলেটিভ বা কারোর নামে ফ্যামিলির কারণে সেই হ্যাঁ, কিন্তু বিজনেস আমি টোটাল টাকা সেক্ষেত্রে স্যার মানে টার্নওভার টোটাল বিজনেস কার নামে আছে? বিজনেস তো তোমার রিলেটিভের নামে আছে বলে তার প্যান কার্ড দেওয়া আছে, তো তার নামে দেখা হবে, তো প্যান কার্ড তো আলাদা হয়ে যাচ্ছে, প্যান কার্ড তো আলাদা হয়ে যাচ্ছে। তুমি কন্ট্রোল করছো বিজনেস, কিন্তু রেজিস্ট্রেশন যার নামে রয়েছে তার তো প্যান কার্ড আলাদা রয়েছে না। লিগেলি হচ্ছে সেই হচ্ছে মালিক বিজনেসের, লিগেলি সেই মালিক বিজনেসের, তুমি বলতে পারো আমি টাকা লাগিয়েছি। अच्छा देखो, तो टर्नओवर देखना पड़ेगा पैन नंबर वाइज,
जो एक ही पेन के अंदर कितना टर्नओवर निकल के आ रहा है, क्या वो 40 से ज्यादा निकल कर आ रहा है? किसके केस में? गुड्स के केस में। सर्विस के केस में 20 लाख से ज्यादा। কি বলছিলে তুমি? यहाँ पे डिसाइड किया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं, ये डिसाइड करने के लिए टर्नओवर चेक किया जा रहा है। जब तुम टर्नओवर चेक कर रहे हो 40 लाख या फिर 20 लाख, तो तब कैसे चेक करोगे? एक पेन के अंडर अगर तुम्हारा तीनों बिजनेस ओपन हुआ है, तो तीनों बिजनेस का टर्नओवर जोड़ दो, देखो क्या तीनों को मिला के 40 एक्सीड हो रहा है या फिर 20 एक्सीड हो रहा है। अगर एक्सीड हो रहा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड? उसके गुड्स के केस में 40 लाख, सर्विस के केस में 20 लाख। अच्छा, यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्रीगेट टर्नओवर देखना पड़ेगा। टर्नओवर मतलब सेल, पूरा ईयर जो सेल है। एबीसी लिमिटेड फर्निश की है फॉलोइंग डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। कौन से ईयर के लिए? 1920 के लिए। 1920 के लिए ये जो फिगर्स दिया हुआ है, ये फिगर्स जीएसटी एक्सक्लूड करके है या फिर जीएसटी इंक्लूड करके है? एक्सक्लूड करके है, मतलब ये, तो इसे क्या कहते हैं? टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू कहते हैं, टैक्सेबल वैल्यू है, ये सब टैक्सेबल वैल्यू है। तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा क्या ये जो टर्नओवर है जीएसटी छोड़ के, क्या ये 40 लाख एक्सीड कर रहा है? तो जब एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करोगे तो कौन सा आइटम नहीं कंसिडर करोगे? जो गुड्स परचेज किए हो अंडर, अच्छा जो गुड्स तुमने सप्लाई किए हैं रिवर्स चार्ज बेसिस में। अच्छा, रिवर्स चार्ज बेसिस क्या है? रिवर्स चार्ज बेसिस है कि एक होता है फॉरवर्ड चार्ज। अच्छा, इससे पहले रिवर्स चार्ज क्या है थोड़ा सा बता देते हैं। नॉर्मल चार्ज है, रिवर्स चार्ज है। सिस्टम अंडर जीएसटी, सिस्टम अंडर जीएसटी कलेक्शन सिस्टम, कलेक्शन सिस्टम, कलेक्शन व्हाट कलेक्शन? जीएसटी कलेक्शन सिस्टम अंडर जीएसटी एक्ट, the GST laws। অ্যাক্ট বললে ভুল হবে, কারণ জিএসটি বলে কোনো অ্যাক্ট হয় না। সিজিএসটি অ্যাক্ট হয়, এসজিএসটি অ্যাক্ট হয়, আইজিএসটি অ্যাক্ট হয়, এভাবে সেপারেটলি বলতে হবে। তো জিএসটি ল বললে তার মধ্যে সব এসে যাবে। জিএসটি কালেকশন সিস্টেম আন্ডার জিএসটি লস। কি হলো? তোমার বডি এদিকে চলে যাচ্ছে কেন? ডু নট টাচ। তোমার টাচ না করলে তার চেয়ারে চলে যাচ্ছে কেন? তুমি সোজা হয়ে বসো। জিএসটি কালেকশন সিস্টেম কি হলো? বাচ্চা ছানার মতো কথা বলছে কেন? তোমার দেখে মনে হচ্ছে এখন মাধ্যমিক এইচএসে রয়েছে। মাধ্যমিকের রেজিস্ট্রেশন হয়, ঠিকই বলেছে। কথা নয়। जीएसटी कलेक्शन सिस्टम अंडर जीएसटी लॉज। ताहले एक होता है कि फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज और एक होता है रिवर्स चार्ज। रिवर्स, रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है? फॉरवर्ड चार्ज में होता है कि
বক বক করে যাচ্ছে কেন? फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है कि जीएसटी किसे पे करना पड़ता है? जीएसटी कलेक्टेड एंड पेड बाय सेलर और सप्लायर। फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है कि सप्लायर या फिर सेलर ही जीएसटी कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट के पे करते हैं। फॉरवर्ड चार्ज में नॉर्मल ये यही होता है, सप्लायर जीएसटी कलेक्ट करता है और वही जीएसटी गवर्नमेंट को भेज देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। रिवर्स चार्ज में क्या क्या होता है कि जो गुड्स खरीद रहा है या फिर सर्विस रिसीव कर रहा है उसे जीएसटी देना पड़ता है गवर्नमेंट को। सेलर विल नॉट कलेक्ट, सप्लायर विल नॉट कलेक्ट, जो बायर है या फिर रेसिपेंट है वही जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जीएसटी इज डायरेक्टली पेड बाय whom? Paid by buyer in case of goods or service recipient. যে সার্ভিস নিচ্ছে বা গুডস কিনছে তো সেই জিএসটি পে করে দেবে ফরওয়ার্ড চার্জে, সরি রিভার্স চার্জে। সেলার উইল নট কালেক্ট, জিএসটি। সেলার or supplier will not collect GST, will not collect GST. সেলার বা সাপ্লায়ার জিএসটি কালেক্ট করবে না, যে কিনছে সেই পে করে দেবে গভর্নমেন্টকে, যে আমি এত টাকার গুডস কিনেছিলাম, এত জিএসটি হচ্ছে, গভর্নমেন্টকে দিয়ে দিলাম। রিভার্স চার্জ মেকানিজম। তাহলে ফরওয়ার্ড চার্জে যে সেল করবে সে কালেক্ট করবে, সে পে করবে इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। तो एबीसी लिमिटेड यहाँ पे है, ताहले यहाँ पे जो रिवर्स चार्ज है वो समझ गए हैं कि व्हाट इज रिवर्स चार्ज। यहाँ पे देखो एक एबीसी लिमिटेड जो है वो सप्लाई किया है ये सब गुड्स या फिर सर्विस प्रोवाइड किए। यहाँ पे देखो 10 लाख का गुड्स सप्लाई किए है और सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड जॉब वर्क प्रीमाइसेस। एक एबीसी लिमिटेड का जॉब वर्कर है, जॉब वर्कर मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट में काम लेता है, वो काम कर देते हैं। सपोज हो सकता है कि एबीसी लिमिटेड 60 बना रहा हो, तो उस केस में एबीसी लिमिटेड से किसी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि मैं बना दूंगा, इसलिए मैं इतना चार्ज करूंगा। जो पर्सन वो ले रहा है कॉन्ट्रैक्ट में काम करवाने के लिए, काम करने के लिए, वो पर्सन को बोला जाता है जॉब वर्कर। सपोज यहाँ पे एबीसी लिमिटेड 60 बनाते हैं और वो काम किसी को सौंप दिया गया है, उस पर्सन को बोला जाएगा कि जॉब वर्कर। जब वो काम कंप्लीट हो जाता है, एबीसी लिमिटेड जॉब वर्क का जो प्रीमाइसेस है उस प्रीमाइसेस से ही सेल कर देते हैं कस्टमर। अंडरस्टूड? सेकंड पॉइंट में वही बोला गया है कि एबीसी लिमिटेड कुछ गुड्स सप्लाई किया है जो कि जॉब वर्कर का प्रीमाइसेस है, उस प्रीमाइसेस में वो गुड्स था। अंडरस्टूड? सेकंड पॉइंट, ये तो एक एबीसी लिमिटेड खुद सेल किया है, और दूसरे पॉइंट में बोला गया है कि वो भी सेल किया है जो गुड्स कहाँ पे रखा था, जॉब वर्कर का जो प्रीमाइसेस है उस प्रीमाइसेस में। जॉब वर्कर को क्यों गुड्स भेजा जाता है? क्योंकि जॉब वर्कर हो सकता है कि वो उसने अंडरटेक किया है कुछ बनाने के लिए, कुछ डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। उसका जो प्रीमाइसेस है वहाँ पे भी, वहाँ से सप्लाई किया गया है कस्टमर को 4 लाख का।
एबीसी लिमिटेड कुछ गुड्स सप्लाई किया है जो कि एग्जाम्प्टेड है। एग्जाम्प्टेड मतलब जो गुड्स के ऊपर जीएसटी नहीं है। वो गुड्स कितना है? 24 लाख का है। और कुछ गुड्स सप्लाई किया है जिसके ऊपर जीएसटी कौन पे करने वाला है? जो बायर बायर और सर्विस रेसिपिएंट। और बेसी होले एक्सिड করলে कुछ ऐसे गुड्स सप्लाई किए हैं एबीसी लिमिटेड ने जो कि नॉन टैक्सेबल है। नॉन टैक्सेबल अंडर जीएसटी मतलब जीएसटी नहीं लगता है। हो सकता है पेट्रोल सप्लाई किया हो सकता है डीजल सप्लाई किया हो, उसके ऊपर तो जीएसटी नहीं है। तो ये पॉइंट तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा कि एबीसी लिमिटेड ने तो सप्लाई की है, मतलब सेल की है। क्या की है? 10 लाख खुद ने किए है, और सेकंड भी खुद ने किए है, लेकिन कहाँ से किए है? जॉब वर्कर का जो प्रीमाइसेस है वहाँ पे पड़ा हुआ था, वहाँ से सप्लाई किया है, लेकिन उसने किया है सप्लाई XYZ लिमिटेड ने। और कुछ एग्जाम्प्टेड गुड्स भी सप्लाई किए हैं जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। कुछ गुड्स सप्लाई किए हैं जिसके जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है, मतलब उसके ऊपर जीएसटी एबीसी लिमिटेड को कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कौन पे करेगा? बायर है, वही पे कर देगा। और सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स, कुछ ऐसे गुड्स सप्लाई किए हैं जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है। तो नॉन टैक्सेबल गुड्स मतलब क्या है? एग्जाम्प्टेड गुड्स मतलब क्या है? एग्जाम्प्टेड गुड्स मतलब है कि अभी जीएसटी नहीं है, अभी जीएसटी नहीं है, लेकिन बाद में उसके ऊपर जीएसटी लगाया जा सकता है। exempted goods means those goods which are not now on which GST are not applicable, now on which GST are not applicable, but on later date GST may be applicable. These are exempted goods. अभी GST applicable नहीं है, लेकिन GST लगाया जा सकता है बाद में। This is called exempted goods. लेकिन नॉन जीएसटीएबल गुड्स और नॉन टैक्सेबल गुड्स क्या है? जो कि जीएसटी में ही कवर नहीं है। कौन सा? पेट्रोल डीजल, फर्स्ट चैप्टर में देखा था। पेट्रोल डीजल, एविएशन, अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो एबीसी लिमिटेड ने ये सारा गुड सप्लाई किया है। लेकिन जब एग्रीगेट टर्नओवर तुम डिटरमाइन करोगे, मतलब जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा वो डिसाइड करोगे, 40 लाख एक्सीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब जो गुड्स तुमने सप्लाई किया है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो गुड्स तुमने सप्लाई किया है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब तुम्हें कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो खरीदा है उसे ही पे करना पड़ेगा जीएसटी, तो उसे एक्सक्लूड करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करने के लिए? 40 लाख या फिर 20 लाख कैलकुलेट करने के लिए, एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे व्हिच सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी एक्सक्लूडेड, कौन सा कंसिडर नहीं किया जाएगा? 40 लाख कंसिडर करने के लिए कौन सा कंसिडर नहीं करोगे? 40 लाख कंसिडर डिटरमाइन करने के लिए ये जो सप्लाई ऑफ गुड्स है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है, मतलब बायर को पे करना पड़ेगा, तो उसे एक्सक्लूड कर दो। उसे एक्सक्लूड करके देखो कि ये चारों मिला के 40 लाख आ रहा है कि नहीं। 40 लाख नहीं आ रहा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख एक्सीड नहीं कर रहा है, विद इन 40 लाख है, तो इसीलिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 40 लाख जब कैलकुलेट करोगे, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर जब कैलकुलेट करोगे, तब जो सप्लाई तुमने किया है जिस पर रिवर्स चार्ज लगता है, मतलब बायर को जीएसटी पे करना पड़ता है, सेलर को कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा 40 लाख कैलकुलेट करते वक्त। इसीलिए मैंने इसे क्रॉस किया। अंडरस्टूड? जीएसटी रजिस्ट्रेशन नॉट लाइबल फॉर द रजिस्ट्रेशन
পারচেজ তো করে সেল দেখতে হবে, সেল। পারচেজ তো ও তো করেছে রিভার্স স্যার যেটা বলছেন আপনারা তো বলছেন ও তো পারচেজ তো করেছে পারচেজ করেছে, সেল করেছে। আর সেলটাকে যখন ধরছি ওটার উপর যখন ট্যাক্স দিতে হবে তাহলে পারচেজ করতে করতে ওটা তো কিছুই তো দিতে হবে সেলের সময় আমি তোমাকে কি বললাম যে তোমার জিএসটি রেজিস্ট্রেশন লাগবে কি লাগবে না সেটা ডিসাইড করতে গেলে তোমার দেখতে হবে যে 40 লাখ এক্সিড করছে কি করছে না। আর 40 লাখ ক্যালকুলেশনের সময় তুমি 40 লাখ কি সেল, 40 লাখ সেল এক্সিড করছে কি করছে না। তো সেই 40 লাখ ক্যালকুলেশনের সময় তুমি সেই সাপ্লাইটা নেবে না যেই সাপ্লাইয়ের উপরে জিএসটি কে পে করবে, বায়ার নিজেই পে করবে। তোমাকে বায়ারের কাছ থেকে কালেক্ট করার দরকার হবে না, সেটাকে এক্সক্লুড করে দিতে হবে। বুঝতে পারলে? আর সেই জন্যই তোমাকে আমি রিভার্স চার্জ ফরওয়ার্ড চার্জ তাহলে আগে দেখিয়ে দিলাম কেন, ওই ডেফিনেশনে আসার আগে। এই জন্যই তো এখানে বললাম না সেলার কালেক্ট করবে না। তো এটা কি এটা আমার জানা আছে, তোমাকে বলতে হবে। अच्छा देखो, রিলায়েন্স এতটা দেখে নাও, আর কিছু বলে দিচ্ছি। দেখো রিলায়েন্স ফ্রেশ, যে তোমরা সাইন করবে দিয়ে দিচ্ছি, কারণ সাইন দেখো আগের দুটো রয়েছে, যাদের অ্যাবসেন্ট রয়েছে তারা তো বসাবে না, যাদের ব্ল্যাঙ্ক রয়েছে তারা এসেছিল, লেখানো হয়নি, সাইন করা হয়নি। ঠিক আছে, তোমার অ্যাবসেন্ট রয়েছে, তুমি আজকের ডেট বসাবে। এখন রাখছি আমি, 2 মিনিট বলে দিই, তারপরে 2 মিনিট বলে দিই। देखो रिलायंस फ्रेश का 5 आउटलेट है, 5 आउटलेट एवरी स्टेट में आउटलेट है, इन एवरी स्टेट हर स्टेट में। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर 30 states 30। तो हाउ मेनी रजिस्ट्रेशन, हर स्टेट में कितना आउटलेट है? वेस्ट बंगाल में 5, बिहार में 5, तो हर स्टेट में 5 करके है। रिलायंस फ्रेश ये एक कंपनी है, रिलायंस फ्रेश बोल के। तो कितना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? हर स्टेट में एक, तो टोटल 30 रजिस्ट्रेशन, टोटल 30 रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा हर स्टेट में एक करके। আরে 5টা ব্রাঞ্চ আছে তো কি আছে, আমি প্রথমে তাহলে কি বলেছিলাম যে 1 রেজিস্ট্রেশন ফর 1 স্টেট, 1 রেজিস্ট্রেশন ফর 1 স্টেট। रिलायंस पेट्रोलियम 2 ऑफिसेस इन गुजरात, 1 इन दिल्ली। गुजरात में 2 ऑफिसेस है, दिल्ली में हाउ मेनी रजिस्ट्रेशन? 2 रजिस्ट्रेशन, गुजरात में 1, दिल्ली में 1। रिलायंस एडुकेशन इसका स्कूल है, हाउ मेनी स्टेट? 5 स्टेट में स्कूल है, 5 स्टेट 5 रजिस्ट्रेशन, हर स्टेट में 1 करके 5 रजिस्ट्रेशन। तो आज के लिए इतना ही, अंडरस्टूड? सपोज आज के लिए इतना ही। सपोज